اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمی اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلامی نشست نمبر 47 کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس نشست کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہو۔ تو آج ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے سر سید احمد خان کے عقائد و نظریات۔ سر سید احمد خان جس کو ہمارے اسکول اور کالجز کے نصاب کے اندر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور جو بھی اسکول اور کالج سے پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ سر سید احمد خان کون ہے۔ سر سید احمد خان کو ایک اسلامی ہیرو اور پاکستانی ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب کہ اس کی حقیقت جو ہے اس کے برعکس ہے، اور آج ہم نے وہ جو حقیقت ہے وہ جاننی ہے کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے آج کی سٹریم کے اندر، اور یہ گفتگو بڑی اہم ہے۔ رات کو چونکہ یہ رمضان شریف کے ایام چل رہے ہیں تو رات کو ٹائم نہیں ہوتا، تو اس لیے رات کو ہم نہیں لائیو آ رہے۔ تو ابھی کیونکہ میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا تو یہ سٹریم میں نے کئی دنوں سے سوچی ہوئی تھی کہ اس کے اوپر سٹریم کرنی ہے، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ تو آئیے جی گفتگو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں سٹریم یارڈ کے اوپر، آپ کو نظر آئے گا، بلکہ سکرین شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ ویکیپیڈیا کے اوپر آپ کو ابتدائی کچھ معلومات سر سید احمد خان کے بارے میں مل جائیں گی۔ یہ ویکیپیڈیا ہے، یہ آزاد دائرۃ المعارف ہے، اور یہ کسی جناب ایک شخص کا نہیں ہے۔ اس کے اندر تمام نظریات و فکریات کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ لکھتے ہیں سر سید احمد خان، یہ اصل نام ہے سر سید احمد خان کا سید احمد بن متقی خان، جو کہ 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوئے اور 27 مارچ 1898 کو یہ فوت ہوئے، اور المعروف سید سر سید 19ویں صدی کا ایک ہندوستانی مسلم نظریہ عملیت کا حامل، مصلح اور فلسفی تھے۔ تو یہ آپ نے ابتدائی معلومات ان کی دیکھ لی۔ آگے لکھتے ہیں کہ 1838 میں اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ وہی کمپنی ہے کہ جو کہ برطانیہ کی یہ کمپنی تھی، انگریزوں نے یہ قبضہ کر لیا تھا ہندوستان کے اوپر۔ تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے ان لوگوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا تھا، مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو جناب غلام بنا لیا تھا۔ اور یہ پھر جنگ چلی تھی 1857 کی جنگ آزادی۔ تو یہ بھی آپ نے اسکول کالج کی کتابوں کے اندر یہ تمام ہسٹری پڑھی ہوگی۔ تو اس کمپنی کا ابتدا کے اندر ہی
इस शख्स ने, सर सैयद अहमद खान ने मुलाजमत इख्तियार की। 1867 और छोटे मुकदमात के लिए जज मुकर्रर किए गए। ये जी जज भी मुकर्रर रह चुके हैं छोटे मुकदमात के, लेकिन ये किसकी तरफ से? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से, मलका विक्टोरिया की तरफ से जज भी मुकर्रर रह चुके हैं। 1876 में वो मुलाजमत से मुस्ताफी हुए। 1857 की जंग आजादी के दौरान वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वफादार रहे। ये ले जी, ये कौन कह रहा है? ये आपको ये विकिपीडिया बता रहा है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के वफादार थे जब मुसलमानों को काटा जा रहा था। मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा इन लोगों ने, तो ये वफादार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और यूरोपियों की जानें बचाने में इनके किरदार की सल्तनत बरतानिया की तरफ से सताइश की गई। जब मुसलमानों की गर्दनों को काटा जा रहा था तो ये सर सैयद अहमद खान साहब जो थे वो यूरोपियन फौजियों की जानें बचा रहे थे, और इनको तगमा इम्तियाज से नवाजा गया सिर्फ इस वजह से कि तुमने अंग्रेजों की जानों को बचाया है। वो अंग्रेज के जो मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। बगावत खत्म होने के बाद इन्होंने असबाबे बगावत पर हिंद पर एक रिसाला लिखा जिसमें हिंदुस्तान की राया को और खासकर मुसलमानों को बगावत के इल्जाम से बरी किया। ये जनाब बिल्कुल इन्होंने झूठ लिखा है कि ये जो रिसाला इन्होंने लिखा था असबाबे बगावत हिंद, इस रिसाले को आज भी उठा के देखें, इसके अंदर अंग्रेजों की जितनी चापलूसी की गई और अंग्रेजों को जनाब मजलूम और मुसलमानों को जालिम ठहराया गया, आप इस रिसाले के अंदर पढ़ सकते हैं। असबाबे बगावते हिंद रिसाला आज भी मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। आगे जनाब ये सारी बड़ी लंबी चौड़ी ये कहानी है। मैं ये सारी तो नहीं पढ़ सकूंगा, मुझे आप हजरात की कॉलें भी लेनी है, आप कॉल भी कर सकते हैं। ये लिंक मैंने शेयर कर दिया, इस लिंक पे क्लिक करके आप शिरकत कर सकते हैं। और लेकिन ये पूरी गुफ्तगू आप विकिपीडिया का ये लिंक मैं ये लिंक भी चले मैं स्ट्रीम यार्ड में ये लिंक सेंड कर रहा हूँ, इस लिंक पर क्लिक करके आप सर सैयद के बारे में मुफस्सल गुफ्तगू पढ़ सकते हैं। अच्छा आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद मुझे कुछ अहम बातें करनी है। आगे कहते हैं जी सर सैयद ने मुरादाबाद में इंग्लिश स्कूल, सबसे पहले एक इंग्लिश स्कूल बनाने वाला यही शख्स था सर सैयद अहमद खान। हिंदुस्तान में अंग्रेजी को दाखिल करने वाला यही शख्स था सर सैयद अहमद खान। मैं पहले कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि पूरी दुनिया के अंदर अंग्रेजी को, इंग्लिश को बहुत गलत समझा जाता है। लोग इंग्लिश से, अंग्रेजी से नफरत करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अंग्रेजी से, इंग्लिश से नफरत की जाती है। पूरे यूरोप के अंदर भी अंग्रेजी से नफरत की जाती है। हर मुल्क की अपनी जुबान है, वो अपने मुल्क की जुबान को फरोग देते हैं। कोई मुल्क भी अंग्रेजी को या दीगर ममालक की जुबानों को अपने मुल्क के अंदर पंपने नहीं देता। आप चले जाएं जनाब जर्मनी के अंदर तो वहां जर्मन बोली जाती है, चाइना में चले जाएं तो चाइनीज बोलते हैं, जापान के अंदर चले जाएं तो जापानी ज़बान बोलते हैं, आप फ्रांस में चले जाएं तो फ्रेंच बोलते हैं, इटली में चले जाएं तो इटालियन बोलते हैं, आप अरबों के रुख करें तो तमाम अरब ममालक के अंदर अरबी बोली जाती है।
آپ ترکمانستان ترکی میں چلے جائیں تو جناب ترکی کو فروغ دیتے ہیں، ترکی بولتے ہیں، اور دیگر بہت سے ممالک آپ خود سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا پوری دنیا کے اندر انگلش کو، انگریزی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ہندوستان کے اندر جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا تو انہوں نے یہاں پر انگریزی کو فروغ دینے کے لیے بہت جناب مسلمانوں کے اوپر اور ہندوؤں کے اوپر مظالم ڈائے کہ کسی طریقے سے یہ انگلش بولنی شروع کر دیں، لیکن ان کی دال گلی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ کیوں نہ مسلمانوں میں سے ہی کوئی داڑھی والا بندہ تلاش کیا جائے جو کہ ہمارے اغراض و مقاصد پر کام کرے، اور ایک عرصے سے جو ہم یہاں ہندوستان میں کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کامیابی نہیں ہو پا رہی، تو وہ اچھے طریقے سے وہ کامیابی ہو جائے۔ انہوں نے پھر بہت سے بندے خریدے، جن میں سے ایک بندے کا نام سر سید احمد خان تھا۔ اس نے ہندوستان کے اندر سب سے پہلا جو کام کیا، انگریزی کو فروغ دیا، مسلمانوں کی اور ہندوؤں کے دل اور دماغ میں انگلش کو اتارنے کا ایک یہ اس نے طریقہ اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے جہاد کا جذبہ ختم کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمان جہاد لڑ رہے تھے، مسلمانوں نے علم جہاد بلند کیا تھا انگریزوں کے خلاف، بغاوت کر دی تھی انگریزوں کے خلاف، تو سر سید احمد خان اور پھر مرزا غلام قادیانی وغیرہ لوگوں نے، یہ چونکہ دونوں ہی انگریزوں کے یہ ٹاؤٹ تھے، انہوں نے انگریز کا کام آسان کیا اور انگریز کے اشاروں کے اوپر کام کیا۔ تو جناب بہرحال یہ پھر اسکول پہلے چھوٹے چھوٹے اسکول بنائے، پھر اس نے یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، اور محمدن لا، یہ جو لا ہے، جو آج کل یہ ہمارے عدالتی نظام ہے، پاکستان کا عدالتی نظام، یہ محمدن لا ایک تشکیل دیا، جو کہ جس کے اندر اسلام اور اسلامی قوانین تو سمجھ لیں کہ رتی برابر آپ کو نظر آئیں گے، بقایا سب انگریزوں کا وہ دیے ہوئے قوانین، وہ سارے ملا کے مکس کر کے ان حضرات نے، ان لوگوں نے وہ یہاں ہندوستان کے اندر ایک محمدن لا کی تشکیل دی، اور جو بعد میں جا کے جب 1947 کو آزادی ملی تو وہ پھر پاکستان کے اندر بھی رائج کیا گیا۔ یہ ابتدائی تھوڑی سی مختصر سی میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، آگے جا کے میں کتابوں کے بھی حوالے دیتا ہوں، تو یہ آپ ویکیپیڈیا کے اوپر مفصل تفصیل ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ کوئی نہیں کالر نظر آ رہا۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے سر سید نے ایک جناب تفسیر لکھی تھی، اور وہ تفسیر جو اس نے لکھی تھی، اس تفسیر کے ابتدائی احوال میں کچھ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تفسیر بڑی جناب مشہور ہوئی، اور پہلے تو سکرین شیئر کر کے میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ تفسیر کے ابتدائی صفحات میرے سامنے موجود ہیں، اور یہ نیٹ کے اوپر سے ہی میں نے یہ پی ڈی ایف اٹھائی ہے۔ یہ سر سید احمد خان کی تفسیر مل بھی جاتی ہے تفسیر القرآن کے نام سے۔ یہ جو میرے پاس پی ڈی ایف موجود ہے، اس کی ابتدا کے اندر ہی صفحہ نمبر 3 کے اوپر یہ ایک خط ہے، اور یہ خط نواب محسن الملک مولوی سید مہدی علی خان کا یہ خط ہے، جو کہ اس نے
सर सैयद अहमद खान के नाम लिखा। ये नवाब मोहसिन उल मलक साहब, ये मिर्जा, ये जो सर सैयद अहमद खान है इसके लंगोटिए थे, इसके भाई भी बने हुए थे, और ये जनाब इकट्ठे ये लोग रहे हैं। अकायद और नजरियात भी दोनों के बराबर ही थे तकरीबन। और ये मोहसिन उल मलक साहब की भी स्टोरी कुछ ना कुछ मिलती जुलती है सर सैयद अहमद खान से। अब कहानी ये हुई, आप देखिएगा कि जब सर सैयद अहमद खान ने ये तफसीर लिखी तो नवाब मोहसिन उल मलक ने ये खत लिखा सर सैयद अहमद खान को, और वो खत क्या लिखता है वो खत पढ़िएगा जरा। ये खत बहुत अहम है। ये 9 अगस्त 1892 को गालबन ये खत लिखा गया है। फरमाते हैं कि दूसरी बात लिखने की ये है कि आजकल मैं आपकी तफसीर देख रहा हूं, जिसे दर हकीकत अब तक अच्छी तरह बल्कि सरसरी तौर पर भी ना देखा था, और उसके ना देखने का सबब आपसे कह भी दिया था। गालबन आप इस बात के सुनने से तो खुश ना होंगे कि मैं अब तक आपकी रायों से इत्तफाक नहीं करता। वो कहता है कि जो तुमने तफसीर के अंदर लिखा है ना, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, और हर बहस में उसे कुरान की वो तफसीर जिसको कुरान के मुतालब की तशरीह और तफसीर समझे नहीं समझता, बल्कि अक्सर जगह तफसीर को तफसीरुल कौल तसव्वुर करता हूँ। मगर इसमें शुबा नहीं है कि जिस मजमून को आपने लिखा है ऐसी उम्दगी और खूबी और सफाई से बयान किया है कि अगर आदमी निहायत ही रासिखुल एतकाद ना हुआ तो जरूर उसकी तस्दीक करने लगेगा, और बिला शुबा एक जादू किए हुए आदमी की तरह आमन्ना व सदकना पुकारने लगेगा। वो कहता है कि तुमने जो तफसीर लिखी है ये इस्लामी तफसीर तो हरगिज नहीं, इस्लामी अकायद तो इसके अंदर मिलते नहीं, बल्कि ये इस्लामी अकायद के बिल्कुल मुखालफ तुमने तफसीर लिखी है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता तुम्हारी तफसीर से, लेकिन ये है कि तुमने बड़ी अदबी रंग के अंदर ये तफसीर लिखी है, बड़े जनाब तुमने लफाजी का सहारा लिया है, बहुत खूबसूरत अल्फाज का चुनाव तुमने किया है। तो अगर इन अल्फाज को देखकर जिस शख्स का जो पक्के अकीदे वाला ना होगा, रासिखुल एतकाद ना होगा, तो वो शख्स जब इसको पढ़ेगा तो फौरी तौर पर वो गर्विदा हो जाएगा तुम्हारी तफसीर का, और कायल हो जाएगा कि जो तुम लिख रहे हो बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। तो आगे जी, वाकई खुदा ने दिल के हालात को अल्फाज में अदा करने और तहरीर में लाने की अजीब हैरत अंगेज कुव्वत और ताकत आपको दी है, और अगर उसे जादू कहें या सहर तो बेमहल ना होगा। मगर अफसोस है कि आपने उन मसाइल को जो आजकल यूरोप के वो तलीम याफ्ता लोग जो मजहब के पूरे पाबंद और मोतकद नहीं हैं, सही और यकीनी और गैर काबिल एतराज समझते हैं। ये आगे पता नहीं क्या लिखा है, इनके लिए पता नहीं कुरान की आयतों को जिनमें उनका जिक्र है ऐसा माइल कर दिया कि वो तावील ऐसे दर्जा पर पहुंच गई कि उस पर तवील का लफ्ज भी सादिक नहीं हो सकता। ये वो कह रहा है कि तुमने ऐसे अजीब रंग के अंदर ये तफसीर अपनी लिखी है कि अगर कोई बंदा तावील भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। तूने ऐसे जादू वाली तहरीर लिखी है
کہ یہاں پہ بڑے بڑے علماء اور فقہا ان کی عقلیں دنگ رہ گئی ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، حالانکہ اسلام کے مخالف تم نے یہ تفسیر لکھی ہے، کوئی ایک عقیدہ بھی اسلامی نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ آپ نے مسلمان مفسروں کو تو خوب گالیاں دی اور برا بھلا کہا، اور یہودیوں کو آپ نے مقلد بنایا کہ یہودیوں کی آپ نے تقلید کی ہے۔ یعنی سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر کے اندر تمام مسلمانوں، علماء کو، مفسرین کو، فقہا کو، اولیاء اللہ کو اور بابوں کو گالیاں دی ہیں، جبکہ یہودیوں کی اس نے تقلید کی ہے، یہودی عقائد اور نظریات کو فروغ دیا ہے اپنی تفسیر کے اندر۔ مگر آپ نے خود اس زمانے کے لا مذہبوں یعنی ایتھیسٹ لوگ جو ہیں، دہریے کی باتوں پر ایسا یقین کر لیا کہ ان کو مسائل محققہ صحیحہ یقینہ قرار دے کر تمام آیتوں کو قرآن کے مؤول کر دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ آپ نے پڑھ لیا جی۔ یعنی یہ سر سید احمد خان کا جو رائٹ ہینڈ یار تھا، جو کہ محسن الملک صاحب خود ایک بہت بڑے عالم دین سمجھے جاتے ہیں، اور اسکول کالج کی کتابوں کے اندر ان کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے، جیسا سر سید کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اگرچہ ان کے اپنے عقائد بھی خراب تھے، وہ چونکہ ابھی ہمارا موضوع بحث نہیں، لیکن میں یہاں پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ لیٹر ہے، وہ خط ہے جو انہوں نے لکھا سر سید کی اس تفسیر کے پڑھنے کے بعد۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہمارے مسائل تھے مسلمانوں کے محققہ صحیحہ یقینیہ، ان کو تم آیتوں کو بدل دیا تم نے، اور ان کی اندر تعویل کر دی ہے۔ یہ بات نشین رکھیے گا کہ یہی کام سارا، یہ جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں، یہی کام سارا مرزا غلام قادیانی نے بھی کیا، اور یہی کام آج مرزا جونیئر بھی کر رہا ہے کہ قرآن حکیم کی محققہ صحیحہ یقینیہ جو عقائد و مسائل ہیں، ان کے اندر اس نے مؤول ان کو کر دیا، تعویل کر دی ہے۔ اور یہ لا مذہبوں یعنی ایتھیسٹ لوگوں کی باتوں پر ان لوگوں نے یقین کر لیا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ آپ اسے تعویل بھی نہیں کہتے۔ ہاں، یہ وہ کہتے تم اس کو تعویل بھی نہیں کہتے، تعویل کو تو آپ کفر سمجھتے ہیں۔ یہ تھا فن سر سید احمد خان کے اندر اور مرزا کہ یہ لوگ تعویل بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ اس کو تفسیر کہتے تھے، بلکہ تعویل کو یہ کفر سمجھتے تھے یہ لوگ، بلکہ صحیح اصلی تفسیر قرآن کی سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو تم لوگ یہی کہتے ہو کہ یہ اصلی تفسیر ہم بتا رہے ہیں تمہیں، قرآن کی اصلی تفسیر یہ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلا کام سر سید احمد خان نے کیا تھا، اس کے بعد مرزا سینئر قادیانی نے، اور اس کے بعد پھر یہ کام آگے چلا تو جناب غلام احمد پرویز نے، جو منکرین حدیث کا وہ پیشوا ہے، ایک شیخ زیتون ایف ایم والوں کا پیشوا، پھر آگے جا کے جوید احمد غامدی اور جناب مرزا جونیئر جہلمی، یہ سارے ایک لائن کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ نہ سیاق کلام، نہ الفاظ قرآنی، نہ محاورات عرب سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اگر آپ میرے اس شبہ کو کسی طرح دور کر سکیں تو مجھے ایسی خوشی ہو کہ کسی اور چیز سے نہ ہو، اس لیے کہ اکثر مقامات اس کے ایسے عمدہ اور پاکیزہ اور اعلیٰ درجہ کے ہیں کہ بعد قرآن و حدیث کے اگر کوئی اسے ورد زبان کرے اور دل پر نقش کرے تو دنیا میں عالم اور سچا مسلمان ہو اور عاقبت میں ان ثوابوں کا مستحق ہو جو سچے مسلمانوں کے لیے خدا نے مقرر کیے۔
तो ये आगे मोहसिन उल मलक साहब लिख रहे हैं कि अगर ये वाकई तुम्हारी तफसीर ऐसी है कि जिसको पढ़ के बंदा आलिम बन जाए या सच्चा मुसलमान बन जाए या उसको जन्नत मिल जाए, तो तू मुझे समझा दे। हालांकि ये तेरी सारी तफसीर ही इस्लाम मुखालफ तफसीर है। अच्छा जी, यहाँ पर कॉलर आए हैं, पहले कुछ कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद आगे गुफ्तगू बढ़ाते हैं। आदिल मुमताज साहब आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस शाह जी कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ और दुआएं देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जी जनाब। बस शाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। और इन लोगों को शाह जी, ये जो सर सैयद हो गया या मिर्जा कादियानी हो गया, इनको तो इन अंग्रेजों ने खड़ा किया था शाह जी कि सबसे पहले इनका ईमान कमजोर करो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सब उन अंग्रेजों के एजेंट है शाह जी। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। असल में हमारे आदिल साहब, आदिल भाई, हमारे बच्चों को पता ही कुछ नहीं है। ये फरेब में आए हुए बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं। इनको स्कूल कॉलेज के जमाने से इनको पढ़ाया गया, इनको पढ़ाया कुछ और गया, असल कहानी कुछ और थी। ये असल मामला, ये सबसे बड़ा एक मसला हुआ है हमारे बच्चों के साथ कि इनको जो पढ़ाया गया उसके ऊपर इन्होंने आंखें बंद करके उसको कबूल कर लिया। बिल्कुल शाह जी, जो कुछ उन्होंने बताया इन्होंने मान लिया जी। अब ये देखिए, ये सर सैयद अहमद खान, ये इसने तफसीर जो लिखी, सबसे पहली तफसीर ये समझी जाती है। इसने जो तफसीर लिखी जनाब, उसके अंदर तमाम चीजें वो ही हैं जो कि आगे लेके चला मिर्जा सीनियर कादियानी। मिर्जा सीनियर कादियानी की तफसीर को एक साइड पे रख दें और जनाब सर सैयद अहमद खान की तफसीर को एक साइड पे रख दें, तो आपको कोई रत्ती बराबर भी फर्क महसूस नहीं होगा। और उसी तफसीर को लेके चला आगे गुलाम अहमद परवेज। जो गुलाम अहमद परवेज ने तफसीर लिखी थी वो भी सेम वही है, उठा के देख लें। फिर आगे जनाब वो सिलसिला बढ़ता है, जवेद अहमद गामदी की तफसीर भी आप उठा के देख लें, वो भी आपको वही मिलती है जो इन तमाम साबका तफसीरों का, ये यानी सर सैयद अहमद खान की तफसीर और मिर्जा कादियानी की तफसीर और जनाब गुलाम अहमद परवेज की तफसीर का समझ लेके एक खुलासा है जो कि जवेद अहमद गामदी की तफसीर के अंदर आपको मिलता है। इसके बाद मिर्जा जूनियर जेल भी जो आज का तफसीर बयान कर रहा है तफसीर कुरान के नाम से, वो भी वही है, वो जो इन सब का खुलासा मिलती है। बिल्कुल शाह जी, बिल्कुल। क्योंकि शुरू तो इसी ने किया था, सर सैयद अहमद ने किया था। सर सैयद अहमद इसको कहते हैं, अभी नाम इसका जुबान पे चढ़ा हुआ है क्योंकि इसको अंग्रेज ने सर का खिताब दिया था ना, क्योंकि इसने बहुत शाह जी, इसने बहुत मदद की थी उन अंग्रेजों की मुसलमानों के खिलाफ। हाँ, वो तो अभी मैंने देखे जी, आदिल भाई बता दिया ना, मुसलमानों के खिलाफ इसने बहुत मदद की थी। सैयद का सर का खिताब इसको मिला था जनाब अंग्रेजों की तरफ से। तो ये हमारे बच्चों को असल में पता ही नहीं है, तो जरूरत इस अमर की है कि अपने बच्चों को बताया जाए कि असल हकीकत क्या है। ये बच्चों को जब तक हकीकत पता नहीं चलेगी, ये दलदल के अंदर धनसते चले जाएंगे, गलत अकायद और नजरियात के असीर होते चले जाएंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा। ये फिर जनाब मिर्जा सीनियर की बातों को भी दुरुस्त समझेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये गुलाम अहमद परवेज की बातों को भी दुरुस्त समझेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जवेद गामदी की बातों को भी बिल्कुल दुरुस्त समझेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये मिर्जा जूनियर जेलमी की बातों को भी दुरुस्त समझेंगे कि हाँ ये ठीक कह रहा है। बच्चों को जब हकीकत का ही पता नहीं चलेगा तो उस वक्त तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल शाह जी। ये शाह जी इनका वो क्या कहते हैं कि इनके अपने अपने वो दूसरे होते हैं, अभी वो ज़हन में लफ्ज नहीं आ रहा, कि इनके सब के अपने अपने प्रोग्राम होते हैं कि शुरू इसने किया है, थोड़ा सा इसने किया है, फिर वो अगले बंदे को ये देते जाते हैं टास्क कि इससे आगे तुमने करना है। करते करते इसी को देख के ना
मिर्जा ने नबूवत का दावा किया था इसी की तालीम को पढ़ के। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। यहाँ पर मैं थोड़े से अकायद नजरियात भी बताता चलूं। असद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मुर्शद, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी मैं ना यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहा हूँ कि मैं ना शाह जी ये मिर्ज़ा कादियानी ऐलान थी कि ना मैं इसकी जो थी मैं इसको सर्च कर रहा था तो मुझे एक बड़ी ना एक हैरान करने वाली चीज़ मुझे जो है ना वो सर्च में मिली कि मिर्ज़ा कादियानी जो था ये जो किताब लिख रहा था स्टार्ट में बराहीन अहमदिया गालिबन, जी तो इसने शाह जी सर सैयद अहमद खान को इसने लेटर लिखे कि मुझे मेरी हेल्प करो, मुझे मौजू दो। तो ये शाह जी उससे हेल्प मांगता रहा किताब लिखने में सर सैयद अहमद ऐसे ही है जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो मैंने अपने असद भैया आप जब कॉल आपकी आती है बीच में एक शोर सा आता है, अपनी कॉल बाद में सुना करें कि वो शोर किस चीज का, इस शोर को खत्म करें यार। या फिर यही है कि जब आप बात कह के खत्म करते हैं तो अपना माइक खुद ही म्यूट कर दिया करें। तो ये बड़ी एक बाद में ना एक कोफ्त सी होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये अर्ज कर रहा था कि बिल्कुल इसके ऊपर मैं स्ट्रीम पहले कर चुका हूँ और वो दलाइल भी दे चुका हूँ कि जिसके अंदर मिर्जा कादियानी सर सैयद अहमद खान से मदद तलब करता था और बाकायदा तौर पे इसकी तफसीर भी इसने पढ़ी थी और उससे मुतासर होकर कई चीजें उसमें से अखज की और उसको प्रमोट किया, क्योंकि असल में दोनों ही अंग्रेज के खुद काश्ता पौधे थे। तो वो भी मिशन पे था, उसके पास एक अलग मिशन था सर सैयद अहमद के पास, और मिर्जा सीनियर के पास एक अलग मिशन था। तो मिशन अलग अलग देते हैं ना ये लोग, तो अलग अलग मिशन लेके ये लोग उठे थे। और यहाँ पर मैं थोड़े से अकायदो नजरियात बता दूं कि आप हजरात को हमने पहले भी बताया था, कई दफा बताया है और इसके भी सबूत दिए हैं आपको कि कादियानियों का एक मरकजी अकीदा है कि ये मलाइका, फरिश्ते जिसको कहते हैं, या जन्नत या दोजख, या मरने के बाद कब्र का जो हिसाब किताब है, तो फिजिकली इनका इनकार करते हैं कि ये फिजिकली कुछ चीजें नहीं है। ये जन्नत दोजख कोई फिजिकली कोई बकायदा चीज नहीं है। ये मिर्जे कादियानी अकीदा था और ये अकीदा कहां से आया था? ये आया था सर सैयद अहमद खान से। ये बात ज़हन नशी कर लें कि सर सैयद अहमद खान ने अपनी तफसीर के अंदर यही बातें लिखी थी। जहां पर जन्नत दोज़ख का जिक्र आया, जहां पर वो गैब का जिक्र आया, जिसका जिक्र सूरह बकरा की इब्तिदा में मिलता है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। तो इस गैब क्या है? रूहानियत है और रूहानी मखलूक है जो आंखों से नजर नहीं आती, आंखों से जो ओझल है, जो कुछ भी, ये सारे मलाइका, फरिश्ते, हूरो गिल्मा, जन्नत, दोजख और आपका जनाब वो जो दुनिया में आने से पहले का जो निज़ाम है, जो आलमे बतने यानी माँ के पेट का जो आलम है, वो भी गैब है। फिर मरने के बाद कब्र, बरज़ख और यौमे हिसाब और फिर जन्नत दोज़ख, ये सब कुछ गैब है। इन सब चीजों का सर सैयद ने इनकार किया और उसने कहा ये फिजिकली कोई चीजें नहीं है। उसने कहा कि मरने के बाद एक तुम्हें खुशी सी मिलेगी और उस खुशी का नाम है जन्नत, और एक गमी सी मिलेगी और उसका नाम है दोज़ख। तो ये जो चीज थी ना, यही अकीदा मिर्जा सीनियर का वो आया और मिर्जा सीनियर ने कहा कि हाँ, जन्नत और दोज़ख जो है ये फिजिकली कोई बकायदा कोई चीजें नहीं है। अच्छा,
नबी पर मुतारफ रिश्तों के जरिए वही नहीं होती बल्कि खारजी तौर पर वही का सिरे से कोई वजूद ही। ये सर सैयद अहमद खान का ये भी अकीदा था कि वही का जो नजूल है ये बकायदा फरिश्तों के थ्रू, फरिश्तों के जरिए से ये वही नहीं होती रही, बल्कि ये जो वही है इसका उसने इनकार किया, सिरे से इनकार ही कर दिया और कहा कि इसका कोई वजूद ही नहीं है। मेराज और शक्के सदर के वाकयात रोया का फेल है। अच्छा, मिर्जा सीनियर का भी एक ये अकीदा आपको मिलेगा कि जनाब वो मेराज शरीफ को फिजिकली कोई चीज नहीं मानता था, और आजकल के जितने भी कादियानी मरज़ई हैं वो नहीं मानते कि मेराज बकायदा तौर पे फिजिकल हुई। तो इसके ऊपर मैं मुफस्सल स्ट्रीम कर चुका हूं और मेरी किताब भी आ चुकी है, मेराजे जस्मानी का सबूत, पूरी किताब इसके ऊपर आ चुकी है। अच्छा जी, तो मेराजे जस्मानी का वो मुनकिर था सर सैयद, असल में ये सबसे पहला जो अकीदा दिया था मेराजे जिस्मानी का, जिसने इनकार किया था वो था सर सैयद अहमद खान। उसके बाद ये जनाब मिर्जा सीनियर के अंदर ये अकीदा आया और दीगर लोगों के अंदर भी ये अकीदा आया। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शक्के सदर हुआ, 4 दफा तकरीबन शक्के सदर हुआ, तो इसका भी वो इनकार करता था और ये सारे इनकार करते हैं, और मिर्जा सीनियर भी इसका इनकार करता है और मुनकिर है, और कहते हैं ये ख्वाब का वाक़या है, ये रोया का वाक़या है। अच्छा जी, और चंद अकायद और नजरियात मैं आपको बताता चलूं कि हजरत ईसा इब्ने मरियम बगैर बाप के पैदा हुए, इस चीज का भी इनकार करता था सर सैयद अहमद खान। वो कहता था कि नहीं, वो बगैर बाप के पैदा नहीं हुए, उनका बाप था। और यही अकीदा मिर्जा सीनियर का भी है, वो भी कहता है कि वो बगैर बाप के पैदा नहीं हुए थे, उनका बाप था। और हजरत ईसा इब्ने मरियम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए, कुर्बे क़यामत में जिंदा आसमान से नजूल करेंगे, ये सबसे पहले ये अकीदा सर सैयद अहमद खान ने दिया था। इससे पहले दुनिया के अंदर इस अकीदे का वजूद ही नहीं था। इस अकीदे को फिर लेके चला मिर्जा सीनियर कादियानी, और फिर गुलाम अहमद परवेज, जावेद गामदी, और जनाब फिर आजकल बैठे हुए हैं मिर्जा जूनियर जेलमी के हवारी, AK शेख, वो जैतून FM वाले, तो ये लोग आजकल ये इस अकीदे को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा जी, एक बात और ज़हननशी कर लें कि मौजज़ात जितने भी, जिस नबी से भी, बशमूल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी मौजज़ात हुए, इनके ये लोग मुनकिर थे। सर सैयद ने मौजज़ाते अंबिया का इनकार किया, जैसे हज़रत ईसा इब्ने मरियम का कुरान पाक में जिक्र है कि वो कोड़ियों को शिफा देते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, बीमारों को शिफा देते हैं, यदे बैजा रखते हैं। जनाब बहुत से मौजज़ात अंबिया के जिक्र हैं कुरान पाक के अंदर भी। मेरे आका के मौजज़ात, दरख्त चल के आ रहे हैं, पत्थर हाथ के अंदर कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, दरख्त कलमा पढ़ रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे हैं, उंगलियों से चश्मे जारी हो रहे हैं, उंगली के इशारे पर चांद हरकत कर रहा है, डूबा हुआ सूरज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से वापस आ जाता है, जो मौला अली मुश्किल कुशा की नमाज कज़ा हुई थी वो वाला वाकया, और दीगर मिराज है, दीगर मौजज़ात, इन सब का इनकार करते थे ये लोग। और सबसे पहले इनकार ये सर सैयद अहमद खान ने किया, और ये हम आपको बता चुके कि ये जो कुछ उसने किया
ये अंग्रेजों के कहने पर किया। ये अंग्रेज का नौकर था, मलका विक्टोरिया का नौकर था, ईस्ट इंडिया का ये नौकर था, सर सैयद अहमद खान। इसने जो तफसीर लिखी, तफसीरुल कुरआन, उसका नाम रखा इसने तफसीरुल कुरआन। और उसके 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 ऊपर जनाब उसकी हयात के ऊपर एक मुफस्सल किताब लिखी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने, जिसका नाम है सर सैयद और मजहब, सर सैयद और मजहब। उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली भी इस चीज का इकरार करते हैं। ये जितनी बातें मैंने बताई हैं ना, इस चीज का वो इकरार करते हैं कि हाँ ये सब ये अकायद और नजरियात थे ये सर सैयद अहमद खान के। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो कि शागिर्दे रशीद हैं सर सैयद अहमद खान के, मौलाना ने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा हयाते जावेद। किताब का नाम नोट कर लीजिए, हयाते जावेद। नेट के ऊपर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी 2 जिल्दों के अंदर, और बाज मकतबों ने इसको 1 जिल्द के अंदर भी छापा है। मेरे पास 2 जिल्दों वाली भी है और 1 जिल्द वाली भी है। इस हयाते जावेद के अंदर मुकम्मल आपको हिस्ट्री मिल जाएगी ये सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान ये रंडीबाज था। ये हयाते जावेद से मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। हयाते जावेद में एक जनाब, चले मैं हयाते जावेद भी आपको दिखाई देता हूं स्क्रीन पर। ये हयाते जावेद स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है, अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हयाते जावेद। ये इसकी जिल्द अव्वल है। इसके अगर आप फहरिस्त में जाएं तो ये अनफुआने शबाब के अंदर आप चले जाएं। ये थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बकाया सब कुछ आप खुद पढ़ लीजिएगा। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप हजरात पढ़ सकते हैं। सफ़ा 55 के ऊपर हम चलते हैं। ये देखिए, सर सैयद का अनफुआने शबाब नहायत जिंदा दिल और रंगीन सोबतों में गुजरा था। वो राग रंग की मजलिसों में शरीक होते थे, बागों की सैर को दोस्तों के साथ जाते थे और वहां राग रंग और दावतों और जलसों में शामिल होते थे। होली के जलसों और तमाशों में जाते थे। फूल वालों की सैर है, ख्वाजा साहब पहुंचते थे, वहां की सोबतों में शरीक होते थे। दिल्ली में बसंत जो गुडियां उड़ाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, ये हिंदुओं का त्यौहार है। होली से वैसे ही बड़ा प्यार था इनको। वहां पे होली में जो कुछ होता है, लड़कियां लड़के मिलके जो कुछ करते हैं वो आप हजरात को पता है। अच्छा जी, बसन्नत के मेले में बहुत जनाब शिरकत करते थे और खूब पतंगे उड़ाते थे। आगे जरा थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, वक्त हमारे पास कम है, चीजें हमने बड़ी बयान करनी है। ये ले जी, खुद सर सैयद के मामू नवाब जैनुल आबिदीन के मकान पर बड़े बड़े नामी गोये, दहरियत और ख्याल गाने वाले जमा होते थे। मीर नासिर अहमद जो दिल्ली में मशहूर बीन बजाने वाले थे वो आए थे, गाना होता था। ये वो ही मीर नासिर है के जनाब जो कि मिर्जा गुलाम कादियानी का मामू था। मिर्जा गुलाम कादियानी का मामा था मीर नासिर, और मीर नासिर की बेटी नुसरत जहान बेगम के साथ मिर्जा गुलाम कादियानी की दूसरी शादी हुई थी। तो नुसरत जहां का ये बाप था मीर नासिर, और मीर नासिर को ही मिर्जे गुलाम कादियानी ने पुकारा था 25 मई की रात को कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। हयाते अहमद किताब का नाम है,
हयात अहमद, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। तो ये वो ही मीर साहब हैं जो कि बड़े गवैये थे, जो डुमके बड़े अच्छे लगाते थे, गाना भी गाते थे। तो पता नहीं उस मजलिस में नुसरत जहां बेगम को भी लाते थे कि नहीं लाते थे, ये आप हयात जावेद के अंदर पढ़ सकते हैं। तो ख्वाजा मीर दर्द के सजादा नशीन, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं यार। ये एक और जलसा राय प्राण कशन के मकान पर, ये हिंदू था, होता था, जो एक मोअज़्ज़ज़ रईस और नहायत ये पता नहीं क्या लिखा है नामी एक तवाइफ, ये जन्ना नामी एक तवाइफ नहायत खुश आवाज दहरियत और ख्याल गाने और बैन बजाने में मशहूर थी। वो अपना पेशा छोड़कर राय प्राकशन के घर में पड़ गई थी। उसकी खातर से वो हर महीने में 17वीं को एक जलसा किया करते थे। शहर के रईस जिनसे उनकी दोस्ती थी बुलाए जाते थे। बड़े बड़े गवैये बहादुर खान, मीर नासर सब जमा होते थे। सर सैयद कहते थे कि मेरे मामू नवाब जैनुल आबिदीन खान हमेशा इस जलसे में जाते थे। मैं भी बारहा उनके हमरा इस जन्ना के ढुमके देखने के लिए गया हूं। ये आप पढ़ लीजिए जनाब, ये सारा यार वक्त कम है। ये तरह तरह के मुजरे करवाता था सर सैयद अहमद खान, और बड़ी बड़ी रंडियां और जनाब शराब नोशियां और बंग चरस के जनाब वो सारे चलते थे, दौर चलते थे। ये पढ़ लें, आपके सामने है, वक्त कम है तो इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पढ़ के ये सारा सुनाऊं। ये पूरी किताब ही आपने पढ़नी है। हयात जावेद किताब का नाम है। सर सैयद की जो रंडी बाजी, जो कमारबाजी, जुआबाजी, शराब नोशी, जो जनाब अंग्रेजों की चापलूसी, जो पुठे कम दुनिया के आपको सारे मिलेंगे इस किताब के अंदर। जी असद भाई अब आप फरमाइए। शाहजी इसका मतलब है हकीम नूरुद्दीन की लौंडी के जो वालिदैन थे वो मरासी थे? जी जी जी, बहुत मरासी नहीं थे ये, अंग्रेजों के, अंग्रेज चूंकि वो रंडीबाज थे सर असद भाई, ये वो बातें हैं जो कि हकायक पर मबनी है। ये किसी बुग़्ज़ और अनाद की बना पर हम नहीं कहते, हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। लोग कई ये समझते होंगे कि जिन्होंने हमारे लेक्चर नहीं सुने कि यार ये शाह जी पता नहीं अपनी तरफ से ये बातें करते हैं, तो जिन्होंने साबका हमारे लेक्चर सुने हैं उनको दलाइल हमने दिए हुए हैं कि ये भाई ये अपनी बच्चियों को अंग्रेजों को पेश करते थे, जो इनको जनाब यूज करते थे। अंग्रेज चूंकि रंडीबाज होते हैं, और बकायदा मिर्ज़ा कादियानी ने तो बकायदा अपने लेटर के अंदर लिखा भी था कि इनको रंडियां भाई जरूरत है, रंडियां कम पड़ गई हैं, जो हमारे पास थी वो तो हमने दे दी, तो अब इनको रंडियां बाहम पुचाओ। तो ये मामले हैं भाई, ये बड़े गहरे मामले हैं। ऐसे ही बात है शाह जी। बाकी शाह जी ये है कि हम खुद पढ़े थे इसको, सर सैयद अहमद खान को, छोटे होते बचपन में किताबों में, तो बड़ा इसका ना अच्छा इम्पैक्ट था हमारे ऊपर, जो छाप छोड़ी जनाब उन किताबों में। जनाब ये बड़ा अच्छा बंदा था। तो अभी भी ऐसे वो बर्गर बच्चे हैं जो नहीं मानते कि नहीं यार वो तो बड़ा अच्छा बंदा था, उसने तो बड़ी देखो बर्गर बच्चे अगर आज की हमारी स्ट्रीम देख लेंगे और हकायक को देख लेंगे तो इंशाल्लाह वो अपने साबका कायदो नजरिया से तौबा कर लेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही बात है शाह जी। एक आधे को तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए मैं सीधे रास्ते पे, तो मैं कहा बंदे दा पुत्र बन जा, क्यों तू भी इहदे नाल मरना है। चले असद भाई, मुझे स्ट्रीम भी खत्म करनी है, और आपको पता है रोजों के एग्जाम है तो बड़े मामलात होते हैं। तो बहरहाल ठीक है शाह जी, कोई मसला नहीं। जज़ाक वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगले दोस्त आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे लब्बैक। खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीर कियानी साहब अमेरिका से जनाब जी। कियानी साहब जी शाह साहब, अपना जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम तो ये अजीब ही मामलात थे उस वक्त के सर सैयद के बारे में भी पढ़ते थे, तो किसी भी अक्लमंद या बेवकूफ़ ने नहीं लिखा था कि ये तो मुल्हिद था, और ना ही वो जो दूसरा शैतान है, जो एक और काफिर है, क्या नाम है उसका, गामदी, उस जलील के बारे में किसी ने लिखा था कि ये काफिर है। बिल्कुल ठीक है। तो नहीं, वो आपको हकायक नहीं ना तो बताते, ये है कि क्योंकि ये आपका जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसके अंदर खुद ये लोग शामिल हैं, तो उन्होंने तो वो अपने अपने पेशवा के बारे में ऐसे तो नहीं ना लिखेंगे, वो हकायक तो बयान नहीं ना करेंगे। जी हाँ, तो दूसरा जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि बरतानिया था, इंग्लैंड जो था, या ये जो आए थे काबज 10वीं सदी में, ये रंडीबाज थे शुरू से ही। इन्होंने जब ये कब्जा किया तो इन्होंने औरतों के कपड़े जो है उनको बिल्कुल वो स्कर्ट सी पहनवा दी थी, तो ये रंडीबाजी वहां से चलती चलती ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए उधर मुगल अंपायर में भी चली गई, जहाँ से ये काफिर मिर्जा कादियानी और ये गामदी और परवेजी और ये सर सैयद और ये सारे गंदगी के कीड़े निकले, जिसने सारे माशरे को इतना गंदा कर दिया कि बस वो गटर बन गया 26 मई वाला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी ये लोग चाहते हैं ना कि बस ये चादरे ततहीर जो हमारी खातून ने, इस्लामी खातून ने पहनी हुई है, नकाब ओढ़ा हुआ है, इसके नकाब को तार तार कर दो, चीर दो, इसके नकाब को उतार दो और इसको बरहना कर दो, ताकि इस्लामी तशख़्ख़ुस जो है वो ख़त्म हो जाए। वो जो चादर ततहीर थी, सज्जदा कायनात, मेरी माँ फातिमा, ज़हरा फातिमा, बतूल फातिमा रदी अल्लाह अन्हा, वो जो उनकी चादर ततहीर इस औरत, इस्लामी औरत के बदन के ऊपर है, वो तार तार कर दो अपनी चिकनी चोपड़ी बातों से। तो ये असल में मिशन ये लोग लेके आए थे, उसके अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक किताब है अपना जो लिखी थी 1857 की जंग के बाद W हंटर ने, उसका नाम है द मुस्लिम इन ओवर इंडियन मुसलमान। तो उसमें ये सारा जो जितना भी प्ले ग्राउंड किया गया है ना काफिर मिर्जे कादियानी का, उसमें डिटेल से लिखा हुआ है। तो ये किताबें जो है मिर्जे काफिर कादियानी ने नहीं लिखी है, ये बरतानिया वालों ने लिखी है। वो तो सारा दिन जो है वो लैट्रीन पर बैठा रहता था, तो देखे ना, बिल्कुल आप बजा बार आदमी जाए तो आपकी बस हो जाती है, उसकी चीखें निकल जाती हैं। तो देखिए कि वो तो उसको तो इतनी जबरदस्त वो पेचश, और वो उसके बाद जनाबे अली वो पता नहीं किस किस्म उसका तो खून नहीं निकलता रहता था। और जब वो मरा 26 मई को, तो वो लतपत था अपना गंदगी में, तो वो कहते हैं कि इसको न लाया जाए, तो वो फायर ट्रक वाले आ गए तो वो नहीं साफ होता था। तो फिर ये कहते हैं कि जी उसने पूजा की, तो किस तरह उसने पूजा की, वो तो गंदगी से अटा हुआ था। वो जो गोरे थे उसके साथ उसके गार्ड, उनके भी पाँव जो थे उनमें भी गंदगी लगी हुई थी। तो वो कहते थे कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। बू इतनी थी कि वहां पर जो है ना सारा लाहौर जो है ना वो थू थू कर रहा था कि ये कौन सा गंदगी का कीड़ा आ गया है लाहौर में। तो ये इनका हाल है कि उसने किताबें वाबें नहीं लिखी, ये सब ड्रामा, जिस तरह वो एक और है, क्या नाम है, मलाला, तो उसकी किताब तो वो एक काफिर गोरिया है, तो वो उसने तो नहीं लिखी। तो ये सब ड्रामा है हमें बेवकूफ बनाने के लिए। तो इनको जूते की नोक पर हम लिखते हैं कि ये काफिर मरज़ई कादियानी हो, या लाशी ग्रुप हो, परवेजी ग्रुप हो, मिर्जा काफिर जूनियर हो, मिर्जा काफिर सीनियर हो, गामदी काफिर हो, या दूसरे जितने भी कुफार हैं,
हम इनको जूते की नोक पर लिखते हैं, और हमेशा हमको चाहिए कि इनसे ऑफेंसिव होकर बात करें। कोई लाड हमें कोई इनसे प्यार नहीं है, ये इन्होंने हमारी सुपारियां दी हुई हैं और हम इनसे प्यार करते करें, दैट इज, ये बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो ये था कि मिर्ज़ा कादियानी कि वो किस तरह गया है 26 मई को, उसको थोड़ा सा अपना मर्जी को शायद इस तरह सुन लें। थोड़ा शिकागो से मिर्ज़ा कादियानी को मिलने के लिए लाहौर में हो गया झगड़ा, 3 ये लाशों का और मिर्ज़ा कादियानी का। उठा मंजी के पावे के साथ फट गया उसका सर, सब कुछ निकल गया उसमें से, और डूब के मर गया मिर्ज़ा कादियानी अपनी ही गंदगी में। जिया भी तो पाखाने में, मरा भी तो पाखाने में, और बनाता रहा सेंचुरियां मगर पाखाने में। ये मिर्ज़ा कादियानी का खुदा है जिसका मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं। तो ये इनको ये पता होनी चाहिए कि ये इनका खुदा है। पहले इसको ये तो क्लियर करें कि ये किस तरह का आपका खुदा है जो टट्टी में मरा है और टट्टी खाता रहा है, वो अपना पत्थर के साथ लगा, चूंकि वो अपना लोटा नहीं था ना, लोटा तत्ता पानी होता था तो वो जल जाता था, तो उसने कहा चलो पत्थर रख लेते हैं, और दूसरी जेब में ना वो शक्कर गुड़ जो होता है, तो पत्थर निकाल लेता था, तो वो उसके साथ ना साफ करते करते वो पत्थर खा जाया करता था। और ये सूरत हाल थी मिर्ज़ा कादियानी की, जो मिर्ज़ा कादियानियों का बड़ा कृष्ण कन्हैया है। और दूसरा ये है कि देखे ना कि जो हिंदू है वो गाय का पेशाब पीते हैं, और जो मिर्ज़ा कादियानी कादियान में रहते हैं ज़ाहिर वो भी पीते हैं। यानी साहब मेरी ना लाइट चली गई थी तो आपकी आवाज भी कट रही है, तो चलें जज़ाकल्लाह, आपका हिस्सा पड़ गया, बहुत शुक्रिया। अगले एक कॉलर को हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सेठ रजा साहब बोलिए जनाब। हेलो यार, इतना टाइम नहीं होता भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई, माइक म्यूट हटाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब। जी जनाब। कैसे हैं मुफ्ती साहब, अच्छे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए। जी मैं इंडिया सूबा बिहार से बोल रहा हूँ मुफ्ती साहब। जी जी जी। और आपको मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे बात हो जाए, बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था आपका। अच्छा जी। और आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, और जो आप काम कर रहे हैं इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मेरी तमन्ना थी कि आपसे बात हो, तो वो जी आज हो गई। बहुत खुश हूँ मुफ्ती साहब आपसे मिलके, आपसे बात करके। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए, कोई पैगाम देंगे? जी मैं पहले मिर्जा जूनियर जो है प्लम्बर, उसको सुन रहा था। अच्छा तो उसके बाद फिर आपका वीडियो मिला हमको यूट्यूब पर। लगभग 3 साल से मैं सुन रहा हूँ आपको मुफ्ती साहब। अच्छा। अल्लाह तो उसके बाद मैं उसको देखना छोड़ दिया, उसके बाद आपको ही देख रहा हूँ जब से। अल्लाह। और बहुत खुशी हो रही है, आपका जो वर्क है, काम है, बहुत खुशी हो रही है कि ये मतलब ऐसे भी अभी हैं हमारे जो रहबर, जो कि सही रास्ते पर हम लोगों को चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। मैं इंडिया से बहुत दिन से सुन रहा हूँ, सुबह बिहार पड़ता है। जी ठीक है।
तो आज सर सैयद अहमद खान के बारे में हमारी स्ट्रीम है, कोई इसके ऊपर आप बात करेंगे? सर सैयद अहमद खान को जानते हैं? जी जी हम जानते हैं, पहले हम 9th में जो पढ़ा करते थे स्कूल में। अच्छा। तो बुक में एक उनका ये टॉपिक था उर्दू की मकबूलियत नाम से। अच्छा। उनका राइटर शायद वही थे, तो उस वक्त हमको पता नहीं चला था कि ये ऐसे शख्स हैं, लेकिन आज हम आपको स्ट्रीम में देख के हमको इल्म मिला कि नहीं, वो एक मुल्हिद थे। तो पहले उनको पढ़ा करते थे खूब कि ये अच्छे थे, इनके तारीफ सुनते थे हम लोग हमेशा उनका। ठीक और हो गया जी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से जरा सर उनके बारे में कुछ हम लोग को। जी बिल्कुल, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से इनका नाम जी एक जी बड़ा लोग जानते हैं। तो बहरहाल जी जी ये खालिस मुल्हिद तो नहीं थे, नेचरी कहते हैं, यानी जो नेचर के जी ऊपर यकीन रखने वाले जो लोग होते हैं, वो बनी था ये सर सैयद अहमद खान, इस ग्रोह का, इस मजहब का। जी जी यानी इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जी जी चले जी, जी। पहले इनके बारे में पढ़े थे, लेकिन उतना हमको इल्म नहीं था कि आज हमको इल्म हुआ। जी और अल्हम्दुलिल्लाह। जी चले जी जी जहां से भाई, बहुत शुक्रिया। और भी कलर हैं। जी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आगे जी, हैदर राजपूत साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जी मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल पे लिया जी। और दूसरी बात ये कि आप बात कर रहे थे तो शायद आपका कहने का मतलब था कि वफात मसीह का जो अकीदा है वो सर सैयद अहमद खान ने दिया, लेकिन आप गलती से ये कह गए कि हयात मसीह और उनके वापस आने का नजरिया जो है वो सर सैयद अहमद खान ने दिया। तो अच्छा, वो गलती हो जाती है, कोई नहीं कोई नहीं, वो जी आप समझ गए ना, आप समझ गए ना माशाल्लाह। जी तो इस बिल्कुल मैं तरीके समझ से गया, दूसरे दोस्त भी लेकिन समझ गए। मैं इसलिए कह रहा था कि कादियानी हजरात जो हैं तो ये इस पे उन्होंने काफी ज्यादा बवेला मचाना था, तो इसलिए मैंने बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। अच्छी बात है ये, बहुत अच्छा कि भाई हम भी इंसान है, वो बोलते हुए वो इधर उधर लफ्ज हो जाते हैं। तो बहरहाल ठीक है, बिल्कुल ही सही हो गया। बिल्कुल। और मुफ्ती साहब मेरे चंद सवालात भी थे जो मैं आपसे करना चाहता था। जी जी फरमाइए। हयात वफात मसीह पे मैं रिसर्च कर रहा था। अच्छा। तो तकरीबन 1 साल पहले मैं आपके चैनल पर आया, वो भी इसलिए आया कि एक कादियानी जो है, चूंकि मेरा भी यही अकीदा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए और जिंदा नजूल करेंगे। ठीक तो है। मैंने आपके चैनल को विजिट किया और बहुत से मेरी जो शक व शुबहात उसने मेरे ज़हन में डाले थे वो दूर हुए। जो उसने मुझे कद खलत के लफ्ज पे उसने जो मुझे मेरा नजरिया खराब करने की कोशिश की, वो भी आपका मैंने मुनाजरा जो है देखा, अता करीम जो है कादियानी, उससे मेरा काफी दूर हुआ। मेरा यहाँ पे एक ये चंद सवालात थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जवाब इसका दे दीजिए ताकि मेरा अकीदा जो है वो और मजबूत हो जाए और मैं अपने मुस्तहकम हो सकूं अपने अकीदे पे। जी आप लिखवाइए। जी, ये मुफ्ती साहब सूरत अल ज़मर की आयत नंबर 42 है कि जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि वो इंसानों को उनकी मौत के वक्त उनकी रूह जो है ना वो कब्ज कर लेता है या नींद के वक्त। ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे कादियानी हजरात कहते हैं कि चूंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक ही करीना बताया है तवफ़ा का मतलब का, क्योंकि तवफ़ा का मतलब है किसी चीज को पूरा पूरा ले लेना, कब्जे में ले लेना, और यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक ही करीना बताया है, वो है रूह कब्ज करने का, और वो नींद में है और मौत के वक्त है। यहाँ पे कुरान मजीद में कहीं भी रूह को जिस्म समेत पूरा पूरा ले लेने का करीना मौजूद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप जरा इस पे जरा वजाहत कर दीजिए। और कोई सवाल है, कर लें आप। जी ठीक। और दूसरी बात सूरत अल मायदा की आयत नंबर 117 है, जहाँ पे फलम तवफ़ैतानी का लफ्ज जो है वो हजरत ईसा ने इस्तेमाल किया है कि अल्लाह जब तक मैं अपनी कौम में मौजूद था मैं इन पर नेकाबान था, लेकिन जब तूने मुझे उठा लिया तो फिर तू ही नेकाबान था। और यहाँ पे वो ये कहते हैं कि यहाँ पे भी रूह को कब्ज करने का करीना होगा, क्योंकि कुरान में एक ही करीना मौजूद है,
दूसरी बात यह कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सही बुखारी की हदीस में यही अल्फाज जो हैं इस्तेमाल किए हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं भी अपने एक साले जो बंदे हैं अल्लाह ताला के हजरत ईसा, उनकी तरह यही अल्फाज कहूंगा। तो अगर यहाँ पे हजरत ईसा के लिए रूह को जिस्म समेत उठा लेने का हो तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यही होना चाहिए, और अगर उनके लिए वफात का हो तो फिर हजरत ईसा के लिए भी वफात का होना चाहिए। यानी दोनों जगह जो तवफ़ैतना का लफ्ज है उसके लिए एक ही करीना होना चाहिए और एक ही मतलब दोनों का किया जाए। जी ठीक। मैं चाहता हूँ पहले आप ये कर दीजिएगा, चले फिर मैं दूसरा सवाल मैं अर्ज करता हूँ। यहाँ पर चूंकि मेरी स्ट्रीम इस हवाले से तो नहीं है, लेकिन मैं आपका जवाब मुख्तसर दे देता हूँ, और इसके ऊपर पहले हमारी गुफ्तगू हो चुकी है कई मकामात के ऊपर। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर जनाब 42 के हवाले से आपने फरमाया, तो ये आयत 42 मेरे सामने है, और आपने फरमाया कि तवफ़ा जो है कादियानी क्या कहते हैं, दोबारा रिपीट कर दें। जी, वो कहते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है खुदा लोगों के मरने के वक्त उनकी रूहें कब्ज कर लेता है, और जो नहीं मरते उनको उनके सोते हुए में उनकी रूह कब्ज कर लेता है, और फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है उनको रोक रखता है, और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है, एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। वो कहते हैं कि यहाँ पे तवफ़ा का एक ही करीना है, वो है रूह कब्ज करने का, नींद में भी और वफात के वक्त भी। तो कुरान मजीद में, पूरे कुरान में एक ही करीना है रूह कब्ज करने का, इसके सिवा कोई करीना नहीं कि रूह को जिस्म समेत उठा लिया जाए वगैरह का। ये ठीक हो गया। मतलब ये कि कादियानी एतराज है कि तवफ़ा का जो करीना है वो भले मौत के वक़्त हो या नींद के वक़्त हो, वो रूह कब्ज़ इन दो जगह के ऊपर ही होता है, तीसरी कोई जगह नहीं है। ये है। मैंने और एक काजी मोहम्मद नजीर फाजिल की एक पॉकेट बुक है, वो भी पढ़ी, जिसपे उन्होंने इस चीज का एतराज उठाया। मैंने वो पूरी पढ़ी है, और जो एतराजात उनके हैं वो मैंने सारे नोट कर लिए, जिनमें से आपके चैनल को विजिट करके मैंने बहुत से जवाबात हासिल भी किए। ये चंद एक सवालात रह गए थे जिसके लिए मैंने आज ये स्ट्रीम जो है वो ज्वाइन की है। जी जज़ाकल्लाह, कोई बात नहीं, मैं अर्ज करता हूँ। चंद इब्तदाई बातें तो पहले सिमात फरमा लें, उसके बाद फिर इस आयत के हवाले से मैं अर्ज करता हूँ। कादियानी मरज़ई कहते हैं जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर नहीं उठाए गए बल्कि फोत हो गए हैं। तो ये वाला जो अकीदा है, इस अकीदे को के मुताबिक मिर्जा गुलाम कादियानी लो जी सच्चा अल्लाह का नबी है। आप मुझे बताइएगा कि हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन रहा हूँ मुफ्ती साहब। आप मुझे साथ साथ बताते रहना है आपने। क्या ये एक अकीदा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा साबित हो भी जाए तो मिर्जा गुलाम कादियानी सच्चा नबी कहां से साबित हो जाएगा? बिल्कुल यही बात है। ये बात कोई समझ आई है आपको? जी बिल्कुल मैं समझ गया, इस पे मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी। और मतलब ये एक अकीदा है, एक इल्मी, इसको ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं कि इल्मी गुफ्तगू है। अगर बिलफर्ज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा साबित हो जाते हैं तो ईसा मिर्जा गुलाम कादियानी किस नुक्कड़ से सच्चा नबी साबित होगा? सवाल ये है। यही बात मुसलमा कज़्ज़ाब के हवारियों ने भी कही, यही बात असवद अंसी ने भी कही, यही बात बहाउल्लाह ईरानी तक जितने आए सब ने यही बात कही। लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लो जी मुर्दा साबित हो जाएं तो ये सारे सच्चे साबित हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, उसमें हर किस्म की गंदगी और दुनिया जहां की बीमारियां, गलाजत मौजूद थी। और क्या हम लोग ऐसे मसीह और मेहदी का इंतजार कर रहे थे जो जना करता फिरे और लोगों को गालियां देता फिरे और अजीबोगरीब हरकत करता फिरे? और मिर्जा कादियानी के बिलफर्ज अगर वफात मसीह साबित हो जाती है और मिर्जा कादियानी अगर मसीह का होने का दावा करता है, तो मिर्जा कादियानी के मसीह होने से मुसलमानों को क्या फायदा हुआ? हम तो जिस काम का इंतजार कर रहे थे, जिस काम के लिए मसीह का इंतजार कर रहे थे, क्या मिर्जा कादियानी ने वो सारे काम कर दिए?
मिर्जा कादियानी ये कहता है कि वफात मसीह का जो बाब है वो अल्लाह ताला ने मुझ पे खोला है, और कादियानी हजरात वफात मसीह साबित करने के लिए कुरान के हवाले देते हैं। आया क्या कुरान मजीद को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं समझा? तबा ताबईन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुजद्दिदीन क्या कुरान नहीं समझ सके? ये सवाल जब उनसे किया जाता है तो वो आगे इधर उधर की बातें करते हैं कि नहीं जी, इनका जवाब दे, उनका जवाब दे, आप ये बातें कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। जी ठीक हो गया। मेरी कई बातें जो मैंने करनी थी वो आपने कर दी हैं। ये चंद इब्तदाई बातें मैं अभी करने लगा हूँ, फिर इसके बाद इस आयत की तरफ हम आते हैं। अच्छा, गुजारिश यहाँ पर ये है कि ये वाली आयत सिर्फ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ऊपर ही तो नाज़िल नहीं हुई। सवाल है एक मासूमाना आजिज़ाना एक सवाल है कि ये सिर्फ आयत मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को पता चला, इसका तर्जुमा क्या है, मफहूम क्या है, आज तक किसी को पता ही नहीं चला। आज तक यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी से पहले और सर सैयद से पहले आज तक किसी ने ये कहा हो कि जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और उसने इस आयत को पेश किया हो या सूरह माइदा की आयत को पेश किया हो या किसी और भी आयत को, और भी जो आयतें पेश करते हैं कादियानी मरज़ई हज़रात, कि मतलब ये कि सिर्फ ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का और तवफ़ा का पता इन लोगों को चला है और किसी को पता ही नहीं चला। अल्लाह के नबी को पता नहीं चला, माज़अल्लाह सहाबा को पता नहीं चला, ताबईन, तबा ताबईन, हमारे असलाफ जितने भी बाबे बुजुर्ग हैं उनको किसी को पता ही कुछ नहीं चला। ये चंद बातें हैं जो इब्तिदा के अंदर करनी जरूरी थी। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं माजरा चाहता हूँ कि मैंने आपका रोका। ये एक उन्होंने ना हवाला मुझे दिया था हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का, कि आप हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात पर फरमाया अल तबकात अल कुबरा ला बिन साद, ये कोई किताब है, अल जुज़ सालिस है, सफ़ा 49 है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि लोगों, आज रात एक ऐसे शख्स की रूह कब्ज़ की गई है जिससे पहले भी आगे ना बढ़ सके और पिछले भी इसके मुकाम को ना पा सके, और आपकी रूह उस रात कब्ज की गई जिस रात ईसा बिन मरियम की रूह उठाई गई, यानी रमजान के 27वीं रात को। ये कहते हैं कि हजरत हसन का भी यही अकीदा था वफात मसीह का, और इमाम मालिक जो हैं उनका भी यहाँ पे एक हवाला मेरे पास मौजूद है जो उन्होंने मुझे दिया था, कि इमाम मालिक के मुतल्लिक लिखा है मजमा अल बहार, ये शायद किताब है, कि अक्सर कहते हैं कि ईसा ने वफात नहीं पाई, लेकिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि वो फौत हो गए हैं। और ये चंद इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि अगर मुतवफ़ी का लफ्ज़ हज़रत ईसा के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि हज़रत मसीह जो अल्लाह ताला ने फरमाया है राफ़ियो का इलैया, इससे मुराद रफ़ा दर्जा और मंज़िलत है, किसी जहत और जगह की तरफ रफ़ा मुराद नहीं। और अगर ये मान लिया जाए कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को आसमान पर उठा लिया है और अल्लाह की मुराद आसमान पर उठाना है राफ़ियो का लफ्ज़ से, तो ये हमें फिर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अल्लाह ताला का मुकाम जो है वो शायद महदूद हो गया है और वो सिर्फ आसमान पर मौजूद है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मैंने उसको अपनी तरफ यानी आसमान पर उठा लिया। तो मैं ये पूछना चाहता था कि क्या आया वाकई इमाम मालिक और हजरत हसन का वफात मसीह का अकीदा था? जी, बात फिर कहीं और निकल गई। अभी आप थोड़ी देर खामोश रहिएगा, मैं अर्ज करता हूँ, ठीक है? और माइक अपना म्यूट कर लें, कोशिश करें ताकि उधर से आवाज इधर ना आए। तो इसके हम मुफस्सल पहले जवाब दे चुके हैं। ये जनाब दोबारा बार बार उन चीज़ों को रिपीट करके ऐसे ना ही मैं अपना वक्त ज़ाया करना चाहता हूँ तो ना ही दूसरों का, क्योंकि पहले कई दफ़ा ये चीज़ें हो चुकी, हर चीज़ के जवाब हम दे चुके हैं, वो हमारे चैनल के ऊपर मुफस्सल मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि जितनी किताबों के भी ये हवाले देते हैं उनके मुख्तसर जवाब ये हैं
کہ یا تو وہ چیزیں بالکل موضوع ہیں، ضعیف ہیں، یا اس کا لفظوں کا ترجمہ کچھ اور ہے. قادیانی مردیوں نے ان کتابوں کے ان عربی الفاظ کا ترجمہ کچھ اور کر کے لوگوں کو پیش کیا، یا یہ سرے سے باتیں جھوٹی ہیں، ان کتابوں کے اندر ایسا ہے ہی نہیں. یہ مختصر میں نے جواب دے دی ہے، اور ان کے دلائل پہلے ہماری ویڈیوز کے اندر موجود. اب آتے ہیں اس آیت کی طرف. اس آیت کو اگر آپ دیکھ لیں تو میں نے ایک آپ کو بتایا کہ ایک لفظ ہے بیٹھنا. ایک بیٹھنے کا لفظ وہ مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب اس کا مقام چینج ہوگا، تبدیل ہوگا، تو اس کا معنی اور مفہوم بھی تبدیل ہوتا رہے گا. میں کہتا ہوں آپ کی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی، دیوار بیٹھ گئی، بینچ بیٹھ گئی، دھول اڑ رہی تھی، دھول بیٹھ گئی. اب دیکھیے یہ بیٹھنے کا لفظ مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے. ہر مقام کے اوپر اس کا ترجمہ اور مفہوم الگ الگ ہے. بیٹھنے کا لفظ جب انسان کے لیے استعمال ہوا کہ انسان بیٹھ گیا، تو انسان کا بیٹھنا ایک الگ ہے. بات کا ذہن میں بیٹھنا کوئی الگ معنی اور مفہوم رکھتا ہے. بھینس کا بیٹھنا کچھ الگ معنی اور مفہوم ہے، اور دیوار کا بیٹھنا کچھ الگ معنی اور مفہوم ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں. یہ بات قادیانی مرزائیوں کی کھوپڑی میں نہیں آتی، یا یہ کہ کھوپڑی میں آ جاتی ہے. یہ تسلیم کرنے اور ماننے کے لیے جناب آتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے ماننی نہیں ہے، کہ مان لیتے ہیں اس توفع کا ترجمہ اور مفہوم ہے کہ موت، مرنا. لیکن یہ عام انسانوں کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے یہ بولا جائے گا تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا. یہ ایک موٹی سی بات بتا رہا ہوں، زیادہ علمی اور لمبی چوڑی باتیں نہیں میں کر رہا، موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں، موٹی موٹی بات. حالانکہ سینکڑوں دلائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ خود مرزا غلام قادیانی تسلیم کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے. مرزا غلام قادیانی کی جو عمر ہے تقریباً کوئی 70 سال، زیادہ سے زیادہ 70 سال ہوئی ہے، 69 ایئر تک ہوئی ہے. اس میں سے 52 سال تک 52 ایئر تک مرزے کا یہ عقیدہ رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے. اس وقت مرزا قادیانی یہ آیتیں پیش کرتا تھا، یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ اپنی زندگی کے آخری 7-8 سال کے اندر انہی قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم یہ بدل دیتا ہے. بڑی حیرت کی بات. اس آیت کی تفصیل تشریح کے اندر میں نہیں جاتا، یہ چند موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہو. جی بھائی. جی سمجھ آ گئی مجھے بات آپ کی. آواز آ رہی ہے آپ کو مفتی صاحب صحیح میری؟ جی جی بولتے رہیں، آپ ہی بولیں. اصل میں نا مجھے تھوڑی سی پین ہو رہی ہے تو میرے لیے بولنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، آپ ہی بولیں. جی ٹھیک. باقی یہ کہ قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ جو توفیتانی کا لفظ ہے وہ دونوں نبیوں کے لیے ایک ہی لیا جائے.
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और हजरत ईसा के लिए भी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जरा आप वजाहत कर इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। बैठने के लफ्ज के बताया तो है कि एक ही लफ्ज है, मुख्तलिफ माना के लिए बोल रहा है। जब मकाम बदलेगा तो माना भी बदलेगा। जी ठीक। और ये कद खलत का लफ्ज जो है, इस पे मैंने आपकी वीडियोस देखी और मैं समझ भी गया, मतलब काफी अच्छा। बाकी यहाँ पे कादियानियों का इतराज ये है कि आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो जाएं, शहीद हो जाएं या वफात पा जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने खलत का मुकाम जो है वो खुद बता दिया कि खलत इंसान का जो है वो कैसे होता है, वफात जो है उसके जरिए और कत्ल हो जाने, और दोनों सूरत में जो है वो वफात है। इसके ऊपर भी मुफस्सल गुफ्तगू हो चुकी है। खलत कद खलत का मतलब होता है गुजर जाना। तो जी बिल्कुल, मैं समझ गया। हम भी इस माने को तस्लीम करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर गए हैं। मौत इसका तर्जुमा दुनिया की लुगत में नहीं लिखा, में नहीं लिखा। बिल्कुल, आगे वो यही पेश करते हैं दलील के आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, अगर उनका खलत जो है वो वफात के जरिए हो जाए या शहीद हो जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे। तो हाँ, तो वो आगे मौजूद है ना कि जो खलत है उनका गुजरना शहादत के जरिए या वफात के जरिए हो, वो करीना मौजूद है। जैसा कि ये जो भी आपने आयत पेश की है, यहाँ पर भी करीना मौजूद है। तो वफा के साथ अल्लाह ने यतवफ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, या मौत का करीना मौजूद है। अगर तवफ़ा का मतलब ही मौत होता तो फिर अल्लाह करीना ये मौत का ना देता। मौत के साथ अल्लाह ने खास कर दिया। बिल्कुल, अब मुझे समझ आई। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं चीज अभी मेरे ज़हन में घूम रही थी कि यहाँ पे तो मौत का करीना भी है। और ये कादियानियों का एक बड़ा ही अजीबो गरीब अकीदा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हिजरत से मुतल्लिक कि हमारा तो चलो ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सलीब पर चढ़ने ही नहीं दिया और उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था। लेकिन कादियानी हजरात ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाया गया, उनको वहां पे 3 घंटे तक लटकाया गया। गालबन 3 घंटे का वैसे जिक्र मैंने पढ़ा है वहां पे कि 3 घंटे तक उनको वहां पे लटकाया गया। सलाबुहू का मतलब है सलीब पर मार देना। अल्लाह कहता है मां सलाबुहू, यानी सलीब पर नहीं मारा, वो सलीब पर लटके, उनको गशी आ गई, यानी उनको कोड़े वगैरह मारे गए। जब उनको गशी तारी हो गई उन पर, तो यहूद ने ये समझा कि शायद ये वफात पा गए। ये नहीं है भाई, ये नहीं है। मां सलाबुहू के अंदर दोनों चीजों की नफी है। जी बिल्कुल, मतलब मैं नहीं, कादियानियों का मैं बता रहा हूँ। सुने तो सही ना, कि सलीब पर चढ़ना और सलीब पे मरना दोनों की नफी है। बिल्कुल, और ये कादियानियों का कहना है कि सलीब पर सिर्फ मारने का मतलब है सलाबुहू का, और उसके तो हम भी नफी करते हैं। वो कहते हैं कि हम भी नफी करते हैं कि सलीब पर वो नहीं मरे, लिहाजा यहाँ पे उसका मतलब है सलाबुहू, यानी मार देना, सलीब के ऊपर मार देना, सिर्फ लटकाना नहीं, मार देना। और वो यहूद ये समझते थे। मुझसे अभी स्ट्रीम नहीं हो पा रही, तो फिर इंशाल्लाह कभी इस मौजू पर बात करेंगे। हाँ जी जी ठीक है मुफ्ती साहब, जैसा आप बेहतर समझिए। जज़ाकल्लाह। अभी बस ना थोड़ी सी पेन हो रही है, तो मुझसे बात सही नहीं हो पा रही। नीचे कॉलर भी बैठे हैं, तो मैं इनसे माजरत करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफी। दुआ को रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।
لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔